بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ دھوپ بہت زیادہ تیز تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اچھی خاصی تھی۔ سردیوں میں تو دھوپ بہت ہی اچھی لگتی، مگر مجھے آج کل کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی وجہ وہی تھا جو پچھلے ایک ہفتے سے غائب تھا۔ اس کی بات بے بات آنے والی یاد مجھے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں بجھے بجھے دل کے ساتھ اندر کمرے میں چلی گئی اور کھیس اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ، کھڑکیاں سب بند تھے، اس لیے اندر نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ چھت کی کڑیوں پر نظر جمائے لیٹی ہوئی تھی، جب مجھے محسوس ہوا کہ میں کمرے میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے جو یہاں موجود ہے۔ میں نے سر گھما کر دیکھا اور مجھے ایسے محسوس ہوا گویا میرا دل رک گیا ہو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا نام نسرین ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے بابا تو ایک کسان تھے ہی، بھائی بھی جوان ہو کر زمینوں کے کام پر لگ گئے، کیونکہ یہ جانے کتنے برس پہلے سے چلا رہا تھا دستور کہ باپ کے بعد بیٹے ہی اس کی کھیتی باڑی کو سنبھالتے تھے۔ ایسے میں گھریلو کام کاج تو عورتیں کرتی ہی تھی، کھیتی باڑی کے کاموں میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ اس طرح ان پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اور یہ سخت جان عورتیں بخوبی ان دنوں ذمہ داریوں کو نبھایا کرتی تھی۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھی۔ بچپن سے ہی بابا کے ساتھ کھیتوں میں جایا کرتی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا رواج نہیں تھا، اور لڑکے بھی زیادہ تر 5 جماعتیں پاس کرنے کے بعد کھیتوں میں کام کرنے لگ جاتے، یا پھر مال مویشی چرانے لے جایا کرتے۔ گاؤں میں سب سے امیر گھر ایک زمیندار کا ہوتا تھا۔ ایک طرح سے وہ گاؤں بھر کا حکمران ہوتا، اور باقی لوگ، جن میں سے اکثر ہی اس کی زمینوں پر کام کرنے والے کسان ہوا کرتے تھے، وہ اس کی رعایت میں شمار کیے جاتے تھے۔ بعض زمیندار اچھے اور نیک ہوتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر عیاش اور شرابی ہوتے، جن سے گاؤں کی عورتیں بھی محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ جس گاؤں میں میں رہتی تھی، وہاں کا زمیندار پہلے ایک نیک اور اچھا انسان تھا، جسے سب بڑے مالک کے نام سے پکارتے، مگر چند سال قبل وہ سانپ کے ڈھسنے سے فوت ہو گیا تھا، اور اب ساری بھاگ دوڑ اس کے بیٹے انور کے ہاتھ میں تھی، جو ایک انتہائی عیاش اور بد فطرت انسان تھا۔ بابا بھی اس کی زمینوں پر مزارے کی حیثیت سے کام کرتا ہے، اس لیے اماں کو اور مجھے بھی وہاں جانا پڑتا۔ مگر جب سے بڑے مالک کا انتقال ہوا اور چھوٹے مالک انور کے کرتوت سامنے آئے، بہت سے دوسرے کسانوں کی طرح بابا نے بھی مجھے باہر نکلنے کا کام زمینوں پر کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ تب سے میں سارا دن گھر پر رہ کر تنگ آ جاتی، کیونکہ گھر پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا جس سے بات چیت کی جا سکے۔ اماں، بابا اور دونوں بھائی سب کے سب کھیتوں پر کام کرنے چلے جاتے، اس لیے میں سب کے جانے کے بعد گھر سے نکلتی اور زرینہ کے گھر پہنچ جاتی۔ زرینہ میرے پڑوس میں رہتی تھی، اس سے میری دوستی بچپن سے تھی۔ اس دن بھی میں اکیلے بیٹھ کر بیزار ہو گئی تو دوپٹہ اچھے سے اوڑھا اور زرینہ کے گھر پہنچ گئی۔ زرینہ کے علاوہ اس وقت صرف اس کی بھابھی وہاں پر ہوتی۔ زرینہ کی اپنی بھابھی سے بالکل نہیں بنتی تھی، اسی لیے وہ بھی میری طرح ہی بولائی پھرتی۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اسی لیے میں بغیر دستک دیے اندر آ گئی۔ زرینہ کی بھابھی اس وقت چھپر کے نیچے بیٹھی رومال پر سوئی دھاگے سے خوبصورت بیل بوٹے کاٹ رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر سلام کیا تو وہ چونکی اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، ارے نسرین، تم بہت دن بعد چکر لگایا، کیسی ہو تم؟ اور خالہ جی کیسی ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہوں بھابھی، آپ کیسی ہیں؟ بھابھی نے جواب دیا، میں تو ٹھیک ہوں، البتہ وہ تمہاری چہیتی دوست بیمار پڑ گئی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا اس کو؟ بھابھی نے منہ بنا کر جواب دیا، پتہ نہیں، شاید بخار ہے، صبح سے منہ سر لپیٹے پڑی ہے، مجھ سے تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی، تم خود ہی جا کر دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر میں اندر چلی آئی۔ زرینہ واقعی اس وقت بستر میں پڑی تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے پکارا تو اس نے لحاف سے منہ نکال کر مجھے دیکھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، زرینہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بھابھی بتا رہی تھی کہ تم بیمار ہو۔ زرینہ نے بے حد بجھے بجھے لہجے میں کہا، ہاں بس کچھ بخار ہے اسی لیے۔ لیکن زرینہ کا اترا سا چہرہ اور روئی آنکھیں تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔
वो जितनी भी बीमार होती इस तरह से अफसरदा कभी नहीं नजर आती थी। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, जरीना इधर देखो मेरी तरफ। उसने ना चाहते हुए भी एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर निगाहें चुरा ली। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। मैं खामोश बैठी उसे देखती रही और जरीना खुद पर जब्त करने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बाहर झांका। भाभी उसी तरह अपने कपड़े की कढ़ाई में मगन थी। मैं उसकी तरफ से मुतमईन होकर दोबारा उसके करीब बैठ गई और उसके दोनों हाथ थामकर मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा, क्या बात है जरीना, ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरह से रो रही हो? जरीना ने घुटी घुटी सिसकियां ली। मैंने बमुश्किल उसे चुप करवाया और दोबारा उससे पूछा। उसने भीगी हुई आवाज में कहा, नसरीन, अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया अपने भांजे के साथ। मैंने चौंक कर उसे देखते हुए पूछा, क्या, कब? उसने जवाब देते हुए कहा, कल ही हुआ है ये सब। पुप्पी जान रिश्ता लेकर आई थी, अजीज का मेरे लिए। अम्मा अब्बा दोनों को कोई एतराज़ नहीं था, तो कल ही बात पक्की कर दी उन्होंने। अब मुझे उसके हिज़्न व मलाल की वजह समझ में आ गई थी। उसे अजीज़ पसंद नहीं था। वो गांव के एक और लड़के आरिफ को पसंद करती थी। दोनों ने मोहब्बत की पिंगें बढ़ाने के साथ शादी के अहद व पैमान भी बांध रखे थे, लेकिन अब जो सूरत हाल हो रही थी तो उनके एक दूसरे के साथ किए गए वादों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। मैंने सारी बात समझने के बाद उससे पूछा, तो अब तुम क्या करोगी? उसने सिसकियां लेते हुए कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो मेरे घर से भी बाहर जाने पर पाबंदी डाल रखी है अम्मा ने। उन्हें कहीं से मेरे अजीज के बारे में सुनगुन मिल गई थी और शायद यही वजह है कि उन्होंने फुप्पी का नापसंद करने के बावजूद ये रिश्ता कबूल कर लिया और अब वो जल्दी शादी करने के भी हक में है। मैंने अफसोस से उसे देखा। वो मेरे हाथ थामते हुए उम्मीद भरे लहजे में बोली, नसरीन, तुम तो मेरी सबसे बेहतरीन सहेली हो ना, मेरा एक काम कर दोगी? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, क्या काम है? जरीना ने आस भरे लहजे में कहा, मैं कुएं के पास वाले बरगद के दरख्त के पास जो पुराना खंडर है वहाँ पर महीने की 15 तारीख को आरिफ से मिला करती थी। उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए वो इस बार भी 15 तारीख को वहाँ पर ज़रूर आएगा। मैं तो अब घर से नहीं निकल सकती क्योंकि अम्मा और भाभी दोनों ही चौकीदार बनी बैठी हैं, लेकिन तुम जा सकती हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जगह तुम उससे मिलने चली जाओ और उसे मेरा पैगाम दे दो कि वह अपनी माँ को मेरा रिश्ता लेने भेजे? मैंने घबरा कर उसे देखा। वो एक ऐसा काम बता रही थी जो बेहद मुश्किल था। मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, ये तुम क्या कह रही हो जरीना? मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ पर? और वहाँ तो कच्ची सड़क भी पास ही है। अगर किसी ने देख लिया तो मेरा अब्बा और भाई तो मार मार कर मेरा बुरा हशर कर देंगे। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वहाँ पर झाड़ियाँ हैं और लई की बहुत आत है, कोई नहीं देखेगा। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ नसरीन, बस तू मेरा ये पैगाम देकर वापस आ जाना। खुदा का वास्ता है मेरा ये काम कर दे, वरना मैं कुछ खा कर मर जाऊंगी, मगर उस उज़ैर से शादी नहीं करूंगी। वो रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़कर ये सब कहने लगी तो मेरा दिल भी पसीज गया। मैंने उसके जुड़े हुए हाथ थामते हुए कहा, अच्छा अब रो तो मत, मैं जाऊंगी उससे मिलने। मेरी बात सुनकर वो खुशी से पागल हो गई, बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। उसके बाद उसने मुझसे मिलने का वक्त, तरीका वगैरह बताया और मैं उसे तसल्ली देकर बाहर आ गई। भाभी अब तक छप्पर के नीचे बैठी अपने काम में मसरूफ थी। मुझे जाते देखकर सर उठाकर कहने लगी, हाँ भाई, तबीयत पूछ ली अपनी सहेली की? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, कुछ बेहतर है अब वो। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, तुमने जो दिलासा दिया उसके बाद तो बेहतर होना ही था। मैं बुरी तरह से चौंक गई। भाभी की इस बात ने मुझे बौखलाने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब था कि उसने मेरी और जरीना की सारी बातें सुन ली थी। मैं घबराई हुई नज़रों से उसे देखते हुए कहने लगी, कैसा दिलासा भाभी, आप क्या कह रही हैं? तो उसने कपड़ा एक तरफ डाला और उठ खड़ी हुई। आहिस्ता से चलती मेरी तरफ आई और मेरे सामने खड़ी होकर मध्यम आवाज़ में कहने लगी, नसरीन, तुम एक अच्छी लड़की हो,
बेहतर होगा कि इन मामलात से दूर रहो, क्योंकि अगर तुमने जरीना का पैगाम आरिफ तक पहुंचा भी दिया तो वो रिश्ता भेजने के लिए भी आमादा हो जाए, तब भी जरीना के अम्मा अब्बा ने उसका रिश्ता कबूल नहीं करना, क्योंकि आरिफ ज़मींदार अनवर का ख़ास चमचा है और उसका चाल चलन भी अच्छा नहीं है, इसलिए उसका रिश्ता वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि तुम रोजीना को उसके हाल पर छोड़ दो, वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएगी। मैं दम बखूद सी भाभी को देखती रही, न जाने कब उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। मुझे अब उनके सामने खड़े रहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने जल्दी से सर हिलाते हुए कहा, जी भाभी, मैं ऐसा ही करूँगी। भाभी ने सर हिलाया तो मैं उनके घर से बाहर आ गई। अपने घर आकर मैं बहुत देर तक इस मामले पर गौर व फिक्र करती रही। आरिफ के किरदार के बारे में बाज इसी किस्म की उड़ती उड़ती बातें मैंने भी सुनी थी, मगर चूंकि ना तो उसके साथ हमारी कोई रिश्तेदारी थी, ना ही उसके घर कोई आना जाना था, इसीलिए उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली थी। अब जरीना ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। भाभी की बातें याद आती तो दिल चाहता कि ना जाऊं, लेकिन जरीना की रोनी सूरत निगाहों में घूमती तो उस पर तरस आने लगता। फैसले के लिए मेरे पास सिर्फ आज का दिन था, क्योंकि कल 15 तारीख थी और इसके अलावा आरिफ से कहीं मतभेद होने का कोई इम्कान भी नहीं था। मैं सारी रात सोचती, करवटें बदलती रही। आखिरकार मसलहत और दोस्ती की जंग में दोस्ती जीत गई। मैंने जरीना की मदद करने का फैसला किया और पुरसुकून हो गई। अब मुझे अगले दिन की शाम का इंतज़ार था। दूसरे दिन असर की अजान हुई तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, बहुत दिन हुए मैं साजिदा से मिलने नहीं गई, आज मिल आऊं? अम्मा ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, ये कोई वक्त है साजिदा के घर जाने का? मिलना ही था तो दोपहर में चली जाती या सुबह को जाती। मैंने जिद करते हुए कहा, अम्मा, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस 15 मिनट बैठूंगी और सूरज ढलने से पहले वापस आ जाऊंगी। अम्मा नहीं मान रही थी, मगर मेरे बार बार इसरार करने पर मजबूरन उन्होंने इजाज़त दे दी। तब कहीं जाकर मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने बड़ा दुपट्टा ओढ़ा और बाहर निकल आई। साजिदा के घर का बहाना मैंने इसलिए गढ़ा था कि उसका घर मेरे घर से दूर एक उस बरगद वाले खंडर के करीब था और मुझे उधर जाने के लिए कोई न कोई जवाब चाहिए था, जो इस तरह मिल गया। उस तरफ बढ़ने वाले हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं तेज तेज कदम उठाती थोड़ी ही देर में वहां पहुंची। मैंने एहतियात से इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर उस खंडर के एक टूटे हुए हिस्से की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर गहरी खामोशी और सन्नाटा था। मैंने झाड़ियों के पास रुककर इंतजार करना शुरू कर दिया। उसी वक्त साइकिल के रुकने की आवाज़ आई और 2 आदमी बातें करते सुनाई दिए। उनके करीब आती आवाज़ों से यही लग रहा था कि वो उधर ही आ रहे थे। जाने कौन थे, लेकिन जो कोई भी थे, मेरी यहाँ मौजूदगी अगर उनकी नज़रों में आ जाती तो मैं तो किसी मुश्किल में पड़ सकती थी। इसीलिए मैंने घबराहट के आलम में इधर उधर देखा और बरगद का घना पेड़ ही एक ऐसी जगह नजर आया जहाँ पर मैं पनाह हासिल कर सकती थी। मैंने जल्दी से दौड़ लगाई और उसके नीचे घुस गई। वो दोनों बंदे बातें करते हुए उसी जगह आकर रुक गए जहाँ पर थोड़ी देर पहले तक मैं खड़ी थी। जहाँ मैं छुपी हुई थी वहां से उन दोनों को तो मैं साफ तौर पर देख सकती थी, मगर वो लोग मुझे नहीं देख सकते थे। मैंने गौर से उन्हें देखा और पहचान गई। उनमें से एक आरिफ था और दूसरा जमींदार अनवर का मुंशी रहीमो था। आरिफ का यहाँ पर आना तो समझ में आता था, मगर ये मुंशी रहीमो क्यों टपक पड़ा था? मैं मुतजस्सिस होकर उनकी बातें सुनने लगी। मुंशी कह रहा था, तुझे यकीन तो है ना कि वो आएगी? आरिफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पक्का यकीन है, हर 15 को आती है वो इधर। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। वो किसके बारे में बातें कर रहे थे? यहाँ पर तो सिर्फ जरीना ही आती थी, लेकिन आरिफ इसके बारे में मुंशी को क्यों बता रहा था? मेरे जहन में जरीना की भाभी की बातें गूंजने लगी। अचानक ही मैं चौंक गई। मुझे याद आया कि जरीना ने कहा था कि कभी अगर वो पहले आ जाती थी तब लई की एक मखसूस टहनी में जो सामने ही थी, वो एक सुर्ख कपड़े का छोटा सा टुकड़ा बांध दिया करती थी, जिससे आरिफ समझ जाता था कि वो आ चुकी है। उसने मुझे भी ऐसा ही करने का कहा था। उसी वक्त मुंशी ने पूछा, कहीं वो आकर चली तो नहीं गई है तेरा इंतजार करके? तूने कहा था कि आज मुकर्ररा वक्त से बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। आरिफ ने इत्मीनान से कहा, ऐसा होता तो मुझे भी मालूम हो जाएगा।
मैं देख कर आता हूँ। वो बाहर निकल गया तो मेरा दिल उछलकर हलक में आन टपका। अब यकीनन वो इस बंधे हुए कपड़े को देख लेगा और समझ जाएगा कि वो यहाँ आई हुई है। उसके बाद उसे मेरे बारे में पता चलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और फिर शायद मैं ज़मींदार अनवर की हवेली के किसी कमरे में पहुंचा दी जाऊंगी। मेरे जिस्म पर लर्जा तारी होने लगा। बेइख्तियार मेरी आंखों से खौफ और बेबसी की हालत में आंसू बहने लगे। इतने में आरिफ वापस आ गया। मुंशी उसे देखकर पूछने लगा, हाँ भाई, पता चला कुछ? आरिफ ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मुंशी जी, आई होती तो सामने लई में सुर्ख कपड़ा बंधा होता, नहीं आई अभी वो। मैं दम बखुद सी होकर बैठी रह गई। ऐसा कैसे हो सकता था कि इतने सामने और वाज़े बांधा हुआ कपड़ा उसे नजर नहीं आया? अगर उसे वो नजर नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो सकता था? क्या कुदरत मेरी मदद कर रही थी? मेरी आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बहने लगे। उसी वक्त एक अजीब सी खुशबू मुझे आसपास महसूस हुई। उसके साथ ही तहफ़्फ़ुज़ का अजीब सा एहसास होने लगा। यह एहसास क्यों कर हुआ था उसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। बस ऐसे लग रहा था जैसे उस बरगद के दरख्त में कोई ख़ास चीज़ है जो कि मुझे महफूज रखे हुए है। मगर मैं अब खड़ी उन दोनों के जाने का इंतज़ार कर रही थी। उन दोनों के जाने का उधर से तो कोई मूड ही नहीं लग रहा था। मैं खड़ी होकर थक चुकी थी, इसलिए आवाज़ के बगैर वहीं घुटनों के बल बैठ गई। तभी अचानक मुंशी की चिंचिलाई हुई आवाज़ आई, कितनी देर हो चुकी है? वो लड़की तो अब तक ज़ाहिर ही नहीं है। मैं तेरी तरह कोई फारिग बंदा थोड़ी हूँ, सारा वक्त यहाँ खड़े इंतज़ार करते निकाल दूँ। मैं बरगद के दरख्त के अंदर से बने छोटे से सुराख से दोनों को देख रही थी। धूप मान पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद ही अंधेरा छाने वाला था। मैं सर पकड़कर बैठ गई कि अब क्या करूं, कैसे यहाँ से निकलूं? ये लोग तो यहाँ से जाने वाले नहीं लगते। तभी आरिफ ने कहा, आप ऐसा करें चले जाएं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, जब वो आएंगी तो मैं मोबाइल पर मिस कॉल दूंगा। मुंशी ने जवाब दिया, एक बात याद रख ले अच्छी तरह से, लड़की आज नहीं तो किसी भी वक्त जमींदार के पास पहुँचा दे, नहीं तो तेरा जो हश्र वो करेगा वो दुनिया देखेगी। मुंशी ने धमकी अमेज लहजे में कहा और आरिफ के बोलने से पहले वहां से साइकिल पर बैठकर रवाना हो गया। आरिफ वहीं खड़ा कुछ देर बड़बड़ाता रहा, फिर चहलकदमी करते उस खंडर में चला गया। उसके अंदर जाते मैं बरगद से बाहर निकल आई। आसपास खड़े लई की आड़ लेती तेज तेज कदम उठाती उस जगह से दूर निकल आई। गांव के अंदर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र था कि मैं बाहिफाजत निकल आई थी। आइंदा के लिए तो मैंने इस तरह का कोई भी काम करने के लिए हमेशा से तौबा कर ली थी। मैं जल्दी से घर की तरफ चलने लगी। जरीना से अब कल ही जाकर बात करूंगी। मैं अंदर दाखिल हुई तो अम्मा सहन में खड़ी थी। मुझे देखकर गुस्से से बोली, तूने कहा था साजिदा के पास बस सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ आती हो, तूने तो पूरा घंटा लगा दिया। मैं अम्मा के इस तरह घूरने से घबरा गई। मैंने अम्मा से झूठ बोलते हुए कहा, अम्मा गई तो 5 मिनटों के लिए थी, मगर आपको तो पता है ना कि हम सखियां मिलकर बैठे तो घंटे बीत जाते, वक्त का अंदाजा ही नहीं हो पाता। अभी भी मैं मुश्किल से उससे जान छुड़ा आई हूँ। अम्मा के चेहरे पर कुछ इत्मीनान नजर आया, क्योंकि अम्मा मेरी सहेलियों के बारे में अच्छे से जानती थी। अम्मा ने मुतमईन लहजे में कहा, मैं तुझे जाने से नहीं रोकती बेटा, मगर दोपहर को या सुबह चली जाया कर, शाम को ना जाया करो। वक्त बहुत ख़राब है, अब अकेले भेजने को दिल ही नहीं मानता। पहले की बात और थी, गांव में हर बहू बेटी महफूज थी, मगर अब तो दिल सूखे पत्ते की तरह लरसता है। मैंने उदास लहजे में कहा, अम्मा बड़े ज़मींदार तो ऐसे नहीं थे, उनका बेटा जाने क्यों ऐसे निकला। मेरी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर दुख छा गया। अम्मा ने अफसोस से कहा, बड़े ज़मींदार तो बहुत अच्छे इंसान थे, सबका ख्याल रखने वाले, सबको इज्जत देते, मगर न जाने उनका बेटा अनवर क्यों ऐसा बन गया। बस बेटा हम कर क्या सकते हैं, अल्लाह हिदायत दे। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिलाया और शाम के खाने की तैयारी के लिए बावर्ची खाने में आई। मैं बार बार शुक्र कर रही थी कि मुझे आरिफ और मुंशी दोनों में से किसी ने नहीं देखा। तभी मुझे अपने करीब वही खुशगवार खुशबू आई जो बरगद के दरख्त में आ रही थी। मैं चौंक कर सारे बावर्ची खाने में नज़र दौड़ाने लगी, मगर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे मैं उस खुशबू का ताल्लुक जोड़ पाती। मैंने आटा निकाल कर रखा, परात उठाने के लिए बावर्ची खाने के दूसरे कोने में गई। तभी अपने पीछे किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से पीछे पलट कर देखा तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि परात वहीं रखी थी जहाँ मैंने आटा गूंदने के लिए रखा था। मैं अभी तक वहीं खड़े थी। आटे की परात खुद ब खुद कैसे वहाँ पहुँच गई? मेरे सिवा तो बावर्ची खाने में कोई मौजूद नहीं था, और ये सब फिर आखिर किस तरह?
मैं भी वहीं तक खड़ी डरी डरी नज़रों से इधर उधर देख रही थी। तभी अम्मा बावर्ची खाने में सब्जी उठाए दाखिल हुई। मुझे ऐसे खड़े देख कर कहा, क्या हुआ, अब तक आटा नहीं गूंदा? अम्मा की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ी। मैंने परात की तरफ देखा। अम्मा, मैं इधर खड़ी थी, ये आटे की परात खुद ब खुद ही यहाँ पर किसी ने रख दी। मेरी बात सुनकर अम्मा हंसने लगी। मैं खफकी से अम्मा को देखती रही। अम्मा ने मुझे मुंह फुलाए देखकर हंसते हुए कहा, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, तुमने खुद रखी होगी, अब भूल गई हो। चलो शाबाश, जल्दी काम ख़त्म करो। मैं खफा सी बैठकर आटा गूंदने लगी। मुझे अपने आसपास वो खुशबू बदस्तूर आ रही थी, ऐसी खुशबू जो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी नहीं सूंघी थी। अजीब मदहोश करने वाला एहसास था। दिल करता कि मैं हमेशा ये खुशबू महसूस करूं। मैंने खाना वगैरह बनाया, फारिग होकर सहन में चली आई। सर्दियों की रातें थी, बाहर निकलने पर सर्द हवा गोया जिस्म को काटती हुई गुजर रही थी, मगर सर्दी की ना परवाह करते हुए मैं खड़ी रही। आज होने वाले वाक़यात के बारे में सोच रही थी। अगर मैं उस बरगद के दरख्त में ना छुपती तो इस वक्त कहाँ होती। ये सोचकर मैं लरस गई और अपने बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। मैं कल का तसव्वुर करने लगी। जरीना को कितना दुख होगा जब मैं उसे आरिफ की हकीकत बताऊंगी। मगर यह भी शुक्र था कि मैं जान गई थी कि आरिफ के बारे में, वरना जरीना के साथ न जाने क्या है शुरू था। न जाने कितनी देर में बस यही सोचती रही कि अचानक चौंक गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास कोई मौजूद हो। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। अम्मा की बात याद आई तो बेख्तियार कांप उठी। जल्दी से कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद किया और चारपाई पर लिहाफ ओढ़कर लेट गई। दिल था कि धक धक किए जा रहा था। मैंने आंखें मूंद ली तो धीरे धीरे नींद की देवी मुझ पर मेहरबान होने लगी। रात को नींद भी पुरसुकून नहीं थी। पता नहीं कैसे कैसे अजीब ख्वाब आते रहे। इसीलिए सुबह उठी तो तबीयत बेहद सुस्त और मुज़महिल से थी। सुबह घर के काम से फारिग होकर मैंने जरीना के घर का रुख किया। हस्बे मामूल आज भी घर में उसके और उसके भाभी के सिवा कोई नहीं था। मैंने भाभी को सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देते मुझे गहरी नज़रों से देखा। क्या हुआ नसरीन, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर कल होने वाले वाक़े से उन्हें आगाह कर दिया। भाभी परेशानी से सब सुनती रही। फिर उन्होंने कहा, चलो इस तरह से सही, कम से कम उस बेवकूफ़ को यकीन तो आएगा ना कि हम सब उसके भले के लिए सोच रहे थे। वो तो दिल में हम सब और ख़ास तौर पर मेरे लिए इंतहाई दर्जे की बदगुमानी पाले बैठी है। भाभी के अफसरदा अंदाज पर मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि भाभी, मुझे यकीन है कि अब वो समझ जाएगी, ये ठोकर उसके लिए काफ़ी होगी। पहले उसे आरिफ की हकीकत नहीं मालूम थी, इसीलिए वो ऐसा करती थी। मगर अब जब मैं उसे सब कुछ बताऊंगी तो मुझे यकीन है कि वो सबके लिए जो बदगुमानी दिल में पाली है वो निकाल देगी। भाभी ने इस बात में सर हिलाया और कहा, ठीक है, उससे मिल लो जाकर। मैं जरीना के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। जरीना ने मुझे देखा तो लपक कर मेरे पास आई और सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, नसरीन, तुमने आरिफ को कहा? मैं खामोशी से जरीना को देखकर ये सोच रही थी कि जाने मेरी बात पे यकीन करे या नहीं। बहरहाल जो हकीकत थी वो तो मुझे उसे बतानी थी, चाहे वो सच माने या ना माने, ये उसकी मर्जी। मैंने लंबी सांस ली और उसे सारी बात बताई कि कैसे मैं उस खंडर तक पहुंची और किस तरह वहाँ ज़मींदार का मुंशी और आरिफ आ गए और उन लोगों के बारे में क्या कहा उसने। मैं कैसे वहाँ से चुप कर भागी। ये सब बातें मैंने जरीना को बताई तो वो कितनी देर सकते में बैठी रही, फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देखती रही। मैं उसको रोते देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, जरीना, देखो मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, मगर मेरी जान, तुम इस बात पर शुक्र करो कि तुम महफूज रही हो, वरना अंदाज़ा करो अगर तुम कभी भी आरिफ की हकीकत नहीं जान पाती तो आज तुम्हारा जाने क्या हाल होता। जरीना ने आंसू भरी आंखें उठाकर देखा और रोते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी, नसरीन, अगर तुम मुझे ना बताती या कोई और मुझे ये सब कुछ बताता तो मुझे कभी किसी पर यकीन ना आता। यही समझती कि सब झूठ है, मगर तुमने कहा है तो सच होगा। मैंने उसकी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, सच होगा नहीं, सच है सब। बस तुम आज के बाद कभी रोगी नहीं, समझी? अब भूल जाओ सब कुछ। हालांकि बुलाना आसान तो नहीं, मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। जरीना ने कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो। मैं कितनी बेवकूफ़ थी, सबसे बदगुमान रही, भाभी को तो अपना दुश्मन ही समझती रही। मैंने कहा, भाभी सब पहले से ही जानती है। जरीना बेख्तियार चौंक गई। उसने बेचैनी से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? वो कैसे जानती थी? मैंने जवाब दिया, हाँ उस दिन जब तुमने मुझे आरिफ से मिलने का बोला था तभी भाभी ने मुझे सब बताया था।
मगर उन्होंने तुम्हारी बात कहीं निकाली नहीं और मुझे भी कहा कि मैं तुम्हें समझाऊं कि वो तुम्हारा भला चाहती हैं। तुम नाहक उनसे बदगुमान रहती हो। मेरी बात सुनकर जरीना शर्मिंदा हो गई। मैं उठकर भाभी को लेकर आई। जरीना ने भाभी से माफ़ी मांगी तो भाभी ने उसे मुस्कुराकर गले लगा लिया। भाभी के हाथ की चाय पीकर मैं वापस चली गई। घर में आई तो अम्मा धूप में बैठी हुई थी। मैं भी अम्मा के पास आकर बैठ गई। अम्मा ने कहा, हो आई जरीना के घर से? मैंने कहा, हाँ अम्मा, 2-3 दिन बाद मेहंदी है उसकी। अम्मा सर हिलाकर उठ गई। मैं वहीं बैठी रही। मुझे फिर से वही खुशगवार खुशबू आने लगी। मैं उसे महसूस करती रही। दूसरे दिन मैं घर से निकली तो आरिफ रास्ते में टकराया। मैं उसे देखकर तेज कदम उठाकर निकल जाना चाहती थी कि वो मुझे देखकर मुस्कुराया और रास्ते के बीच खड़ा हो गया और कहने लगा, नसरीन साहिबा, सुना है आपकी बड़ी दोस्ती है जरीना से। मैंने सर्द लहजे में कहा, तो इससे आपको क्या तकलीफ है? उसके चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने कहा, नहीं जी, हमें क्या तकलीफ होगी, सुनाइए कैसी है आपकी सहेली साहिबा। मैंने गुस्से से उसे घूर कर जवाब दिया, ठीक है, और एक बात अच्छी तरह से सुन लो, आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। मैं पलटकर घर चली आई। दूसरी रात मैं जरीना के घर थी। आज उसकी मेहंदी थी। गांव की सारी लड़कियां जमा थी। मैंने आते ही सारे काम अपने जिम्मा ले लिए। मुझे पहले से वहां देखकर एक लड़की ने शरारती लहजे में कहा, जरीना को बहन की कमी नहीं होने दी भाई तुमने। जरीना मुस्कुराई तो मैं भी हंस पड़ी। हम दोनों की कोई बहन नहीं तो हम दोनों एक दूसरे की बहनें बनेगी ना। मेरी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगी। इस तरह हंसी मजाक में हम सब तैयार हो गए और मेहंदी उठाए दुल्हे के घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में गांव के लड़कों के टोले खड़े थे। हम सबसे बेनियाज दुल्हा के घर पहुंचे। हमारे पीछे वो सब भी आ गए। लोगों के खड़े होने की वजह से बहुत भीड़ बन गई थी। किसी ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं उछलकर दूर हट गई। भीड़ की वजह से मैं उसे देख नहीं पाई। एक लड़के ने मुझे देखकर अपने पास खड़े अपने दोस्त के कान में कुछ कहा। वो ओट में खड़ा था, इसलिए उसका चेहरा वाज़े नजर नहीं आ रहा था। मैं कंधे उचकाकर आगे बढ़ गई थी। शादी ब्याह में अक्सर ऐसे लफंगे नजर आते जो बिना वजह ही तंग करते, इसलिए उन दोनों को नज़रअंदाज कर दिया। मगर मैं नहीं जानती थी कि उसी लम्हे मेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी जरीना की मेहंदी लेकर ना आती। दूसरे दिन मैं देर तक घोड़े बेचे सोई रही। अम्मा के जिन जोड़ने पर उठी। अम्मा गुस्सा कर रही थी। गज़ब खुदा का, इतनी देर तक कभी नहीं सोई। मैंने खिड़की से झांका तो दिमाग भग से उड़ गया। दोपहर हो रही थी और मैं अब तक सो रही थी। मैंने जल्दी से काम ख़त्म करना शुरू किया। आज तो बहुत देर हो चुकी थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि गैर महसूस तरीके से 1 घंटे में ही सारे काम अंजाम पा गए थे। मैं खड़ी सोचती रही कि अम्मा ने मुझे हैरत से देखते हुए कहा, तुम में कोई जिन वन तो नहीं आ गया? इतनी जल्दी कैसे कर लिया सब? मैं हंस पड़ी। तभी मेरे सामने एक सुर्ख फूल गिरा। मैंने ऊपर देखा मगर मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने नीचे झुककर गुलाब का फूल उठाया और उसकी खुशबू सूंघने लगी। अम्मा अब तक मुझे देखे जा रही थी। मैंने अम्मा को देखा तो मुझे अम्मा के चेहरे पर अजीब सा तासुर नजर आया। अम्मा अजीब सी नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने उनकी इस तरह देखने से तंग आकर कहा, क्या हुआ अम्मा? अम्मा ने कहा, कैसी हरकतें कर रही हो तुम? मैंने अम्मा को हैरानी से देखकर कहा, कैसी हरकतें अम्मा? एक फूल ही तो उठाया है। मैंने अपने हाथ में पकड़ा फूल उन्हें दिखाया। अम्मा गौर से मेरे हाथों को देखते हुए कहने लगी, कैसा फूल? बावली हो गई है क्या? अम्मा नाराजगी से मुझे देखती चली गई। मैं अपने हाथ में पकड़े फूल को घूरती रही जो अम्मा को दिखाई नहीं दिया। पता नहीं क्यों अजीब मुअम्मा था, कुछ समझ में नहीं आया। जरीना की शादी से 1 दिन कबल मैं उसके घर गई तो वहाँ मौत की सी खामोशी छाई थी। मैंने सबके उतरे चेहरे देखकर कहा, क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? भाभी रोने लगी। मैंने घर के दूसरे अफराद को देखा तो सबने सर झुका दिए। मैंने परेशान होकर फिर पूछा, क्या हुआ है, रो क्यों रहे हैं सब? और जरीना कहाँ है? मेरी बात सुनकर जरीना की अम्मा सिसकियां भरने लगी। काश वो पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। आखिर हुआ क्या है, क्या किया है जरीना ने, कुछ बताए तो सही। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटी जरीना रात से गायब है। हम सब उसके दूल्हे की मेहंदी लेकर उसके ससुराल गए थे, लेकिन वापस आए तो वो घर पर ही नहीं थी।
कमबख्त मारी हम सबके मुंह पर कालक मलकर भाग गई थी किसी के साथ। मैं सख्ते में रह गई। नहीं, जरीना ऐसा नहीं कर सकती। मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने कहा, जरीना ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे जानती हूँ, वो तो खुश थी इस शादी से। भाभी आप बताएं ना, उसे ज़बरदस्ती अगवा कर लिया होगा। भाभी ने मेरी बात की तायद की और आरिफ के बारे में सब बताने लगी। उसकी बात सुनकर सब घर वाले चुप साधे बैठ गए। जरीना के बाप ने बेचारगी से कहा, जमींदार अनवर और उसका चमचा आरिफ बहुत ताकतवर लोग हैं, हम चाह कर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं दुख से उनको देखकर घर चली आई। अम्मा और घर के दीगर अफराद हस्बे मामूल काम पर आए हुए थे। मैं अपने कमरे में आ गई और जरीना को याद करके रोने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। मैं जल्दी से खिड़की के पट बंद करके वापस बैठ गई। बंद खिड़की फिर से खुल गई और अब की बार मैं डरी नजरों से बैठी खिड़की को तक रही थी, क्योंकि मैंने तो उसके चटकी लगाई थी, तो वो कैसे खुली। घर में भी कोई मेरे सिवा मौजूद नहीं था। तभी सामने की दीवार पर एक ह्योला सा नजर आया। मैं फटी नजरों से दीवार को देख रही थी। मैं अब की बार बुरी तरह से खौफजदा हो चुकी थी। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम, सामने आओ। उस ह्योले ने इंसानी रूप धारा। कुछ ही देर में ह्योले की जगह खूबसूरत नौजवान खड़ा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं चकरा कर गिर पड़ी। किसी ने मेरे चेहरे को थपथपाया। मैंने आंखें खोल दी। वही खूबसूरत लड़का ऊपर झुका हुआ था। मुझे होश में आते देखकर वो जरा पीछे हुआ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, कौन हो तुम। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया। उसने कहा, मेरा नाम रब्बात है, मैं एक जिनज़ादा हूँ, तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया। मुझे कुछ दिन पहले होने वाले वाक़यात याद आए। वो फूल, वो खुशबू। मैंने उस जिनज़ादे होने पर उसका यकीन कर लिया था। मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहते हो। मेरा सवाल सुनकर रब्बात ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नसरीन। उसका इजहार सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक जहर सा था और मेरा दिल जैसे उसकी तरफ खिंचा जा रहा हो। मैंने बमुश्किल खुद को संभालते हुए कहा, तुमने मुझे कहाँ देखा। रब्बात के हसीन चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें बरगद के दरख्त के नीचे देखा था, जब तुम उन इंसान नुमा दरिंदों से छुपी थी। मुझे उसी पल तुमसे मोहब्बत हुई थी। मैं कड़ी से कड़ी मिलाती गई। तो वो सुर्ख कपड़ा इसने गायब किया था। मैं दिल में सोच रही थी जब रब्बात ने कहा, हाँ वो मैंने गुम किया था। मैं उसका जवाब सुनकर उछल पड़ी और रब्बात मुस्कुराया। उसने कहा, हम जिन्नात हैं, हमें सब पता चल जाता है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ा। उसका सर्द हाथ बेहद नरम था। तभी मुझे सहन में अम्मा और भाइयों की आवाज़ें आई। मैंने रब्बात को जाने का इशारा किया और ख़ुद बाहर निकल आई। दूसरे दिन मैं अब्बा के कहने पर खेतों में खाना देने वापस आई। वापस आते हुए अचानक मुझे ठटक कर रुकना पड़ा, क्योंकि एक धूल उड़ाती हुई जीप मेरे सामने आकर खड़ी थी। मैंने थूक निकलते हुए उसकी तरफ देखा। जीप में एक अच्छी शक्ल सूरत का नौजवान बैठा था। मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैंने बेख्तियार अपने चेहरे को दुपट्टे के पल्लू से ढक लिया। एक तरफ से होकर खिसकने लगी। मुझे ये समझने में दुश्वारी नहीं हुई कि वो वही अयाज ज़मींदार अनवर था। जो ही मैं जीप के बराबर से गुजरे, उसने खिड़की से अपना बाजू निकालकर मेरा हाथ थाम लिया। मैंने घबरा कर उसको देखते हुए अपना बाजू उससे छुड़ाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। वो मज़ा लेते हुए अंदाज में बोला, छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा है तुझे शहजादी। थोड़ी सी मोटी ज़रूर है तू, मगर बहुत खूबसूरत है। इस धूल मिट्टी में क्या कर रही है। चल मेरे साथ, रानी बनाकर रखूंगा तुझे अपनी हवेली में। मैंने उसे नफरत से देखते हुए कहा, मैं लानत भेजती हूँ तुझ पर और तेरी हवेली पर भी। मेरा हाथ छोड़ दे, वरना बहुत बुरा हशर होगा तेरा। उसने एक जोरदार कहका लगाकर कहा, बड़ी अक्खड़ हो भाई तुम। तेरे जैसी लड़कियां तो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो खौफ से कपकपा कर रह गई। उसके इरादे जानकर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से बाजू झटक कर खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया और गांव की तरफ भागने लग गई थी।
وہ اور اس کے ساتھ جیپ میں موجود اس کے 2 چیلے میری بدحواسی پر قہقہے لگاتے ہوئے جیپ کو میرے پیچھے پیچھے ہی دوڑانے لگ گئے تھے۔ میں تو حتی الامکان تیز بھاگنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر جیپ سے تیز بھاگنے میں تو میں بری طرح سے ناکام تھی۔ خوف اور تھکن سے میری ٹانگیں شل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بے جان ہو کر گر پڑتی، اچانک ہی میری نظر پرانے کھنڈر اور اس پر لگے کھڑے برگد کے درخت پر پڑی۔ مجھے ربات کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ وہ برگد کے درخت میں رہتا ہے۔ مجھے گویا اندھیرے میں ایک امید کی کرن نظر آ گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور دوڑ کر اس کھنڈر میں گھس گئی اور پھر تیزی سے اس برگد کے درخت کے نیچے چلی گئی۔ مجھے باہر جیپ کے رکنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ان لوگوں کی ہنسی کی آوازیں بھی سنائی دی۔ وہ اب کھنڈر میں آ چکے تھے اور فحش باتیں کرتے ہوئے مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے پرامید نظروں سے درخت کو دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، ربات، تم کہاں ہو؟ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ چند لمحے تک خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک ہی چاروں طرف اندھیرا سا چھا گیا تھا اور ہوا نے آندھی کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ ہی ایسی آواز آنے لگی جیسے کئی عورتیں بین کر رہی ہوں۔ وہ تینوں بہت بری طرح سے گھبرا چکے تھے۔ انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ کر واپسی کا قصد کیا، مگر ان کے ظلم کا حساب دینے کا اب وقت آ گیا تھا۔ جیسے ہی انور نے باہر نکلنے کی کوشش کی، برگد کی لمبی اور نیچے جھکی ہوئی ٹہنیاں اچانک ہی اس کے اوپر ہوئی۔ انہوں نے کسی رسی کی طرح اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تبھی مجھے وہاں پر ربات نظر آیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، لیکن وہ تینوں ہی اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے انور کے دونوں چیلوں کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے سرخ شعلوں نے نکل کر ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ چند لمحوں کے اندر اندر وہ تڑپتے ہوئے مر گئے۔ میں نے انور کی طرف دیکھا۔ وہ برگد کی رسی نما ٹہنیوں کے بیچ میں پھنسا ہوا زور زور سے روتے ہوئے معافیا مانگ رہا تھا، مگر برگد کی ٹہنیاں پتلی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ دھاگے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر وہ اس کے جسم کے اندر گھس کر خون کی طرح اس کی نسوں میں دوڑنے لگی۔ چند ہی لمحے بعد جب وہ اس کے سر سے گھس کر پیروں کی طرف سے نکلی تو انور کے جسم کے جیتھڑے اڑ گئے۔ اس کی آخری چیخیں بڑی کربناک تھی۔ میں بے ساختہ دوڑ کر ربات کے گلے لگ گئی اور اس کی باہوں میں ہی میں بے ہوش ہو کر وہیں پر گر پڑی تھی۔ انور کی چیخیں سن کر وہاں سے گزرتے بعض راہگیر دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ انہوں نے اس کی موت کا وہ بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کی موت کے بعد یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے گاؤں ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ مجھے وہاں تو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس جن زادے ربات کی محبت پر اب مجھے پورا یقین ہو چکا تھا، اسی لیے مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس لیے میں پھر جلدی ہم دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ میرے علاوہ اور کوئی بھی فرد اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میں ایک جن زادہ ہے۔ زرینہ بھی حویلی والوں کی قید سے اب آزاد ہو چکی تھی۔ اسے قید کسی اور نے نہیں بلکہ عارف نے ہی اغوا کیا تھا۔ اس کا ہونے والا عزیز اس کا شوہر واقعی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اسی لیے تو اس سب کے باوجود بھی جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس نے ہر چیز کو بھلا کر پھر سے اسے اپنا لیا تھا۔ آج ان تمام واقعات کو بیتے 10 سال گزر چکے ہیں۔ اب ہم سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں، مگر جب کبھی بھی مجھے انور کی موت کا وہ منظر یاد آتا ہے تو میں بے ساختہ کانپ اٹھتی ہوں، اور پھر مجھے ربات سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ ربات میری اس حالت کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔